So with the consideration of the overall mechanism of photosynthesis that we discussed in very first lecture, overall photosynthesis मैंने आपको day 1 पर ही सारा बता दिया था कि कैसे इक्वेशन होता है, कैसे उसकी डेफिनेशन है, कैसे एटीपी जनरेट होते हैं, एनर्जी जनरेट होते हैं लाइट रिएक्शंस में, कैसे उस एटीपी का कंजप्शन किया जाता है या यूटिलाइजेशन किया जाता है डार्क रिएक्शन में. दैट वी स्टडीड ओवरऑल ऑन डे 1. Day 2 we studied one by one what is definition. It is an anabolic process, it is a multi-enzymatic process, और दूसरा मैंने ये कहा कि energy generating process since it is an anabolism. After that we had discussed separately the equation 6CO2 plus 12H2O. It gives C6H12O6 plus 6 oxygen plus 6 water molecules along with some energy molecules. That means overall energy भी बन रही है 6 carbon dioxide और 6 carbon dioxide and 12 water molecules are used up in the equation, in the reaction, and produces some water molecule along with oxygen and the food that is known as carbohydrates. So we studied कि it is anabolic reaction, it is photon to its chemical, photon energy, radiant energy to chemical energy, photon energy to radiant energy. This is also photosynthesis. Inorganic to organic, inorganic content to organic content. This is also what? Photosynthesis. So 2-3 definitions we studied. In the equation, we studied the oxygen which is releasing out as a pranavayu for animals is basically comes from or is released from which molecule? Water or carbon dioxide? Water molecule. So we need a hydrogen donor in the reaction. That hydrogen donor is not mandatorily water always. In some bacteria, it may be some hydrogen sulfide like material which can release hydrogen. And ये पता कैसे लगा? तो इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बताए. 2 एक्सपेरिमेंट में पहला मैंने आपको बताया रुबेन एटॉल साहब ने क्या लिया था? हेवी आइसोटोपिक ऑक्सीजन. और उन्होंने बताया कि वो जो ऑक्सीजन निकल रही है वो वाटर से निकल रही है, क्योंकि यदि वाटर की जगह पर H2O में ऑक्सीजन नॉर्मल और ऑक्सीजन यदि 18 वाला लिया गया तो उधर 18 वाला ही निकला, जिसने ये कंफर्म कर दिया कि यस वो वहीं से निकला होगा. एक और एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि वहां पर वाटर की जगह H2S रख दिया जाए तो सल्फर गैस निकल आई. इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल व्हिच इज रिलीजिंग आउट इन द रिएक्शन इज फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. आफ्टर दैट मैंने आपको कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट बताया. हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? Joseph Priestley. Who interpreted or who explained that sunlight is necessary for the plants? Jan Ingenhousz. Who told that glucose is usually stored in the form of starch and that is in the green part of the plant? Von Stark. Who explained that the maximum absorption is in blue red light spectrum? T.W. Engelmann. T.W. Engelmann used which algae for the experiment? Cladophora. Who explained that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen is released from a suitable oxidizable compound? Von Neal. अब समझने वाली बात यहाँ है, स्टेटमेंट बच्चों ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने लिखा हुआ है
who, based on the studies of purple and green bacteria, demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate. इन्होंने भी बताया light dependent reaction. Light जरूरी होता है, sunlight is necessary, वो इंजन हॉस साहब ने बताया, बट ये light dependent reaction होती है, ये वॉन नील साहब ने भी बताया. तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि sunlight is essential and light dependent, दो अलग अलग बातें. Okay, then we studied the site of photosynthesis. The site of photosynthesis is actually the chlorophyll, which is present in the quanta, which is present in the complexes of the thylakoid membrane, which is of grana, is a part of chloroplast, is the organelle of mesophyll cell, is the cell of the palisade tissue, and is the tissue of an organ called leaf. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Then we studied, बस यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था, और मैंने शायद आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दिया था कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए जो मल्टी फैक्टर से अफेक्टेड होती है, इसका एक फैक्टर मैंने आपको बता दिया था, एक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी थी, दैट वाज सनलाइट. इज इट? Yes, sir. In that case of sunlight, we studied so many things like red drop effect, immersion enhance effect, Vibgyor, the range from 390 to 760 nanometer, and whatnot. So many things were there. But हमें ये समझ में आ गया था कि maximum absorption will be in the blue and maximum action will be in Red. perfect. अब requirement number 2 का अपना काम है. Is it? Excuse me, Yes, sir. sir. Yes, excuse. सर मॉड्यूल में दिया है कि वैन 9 ने H2S का एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहां पर उन्होंने बताया था ना कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से ही आता है, तो फिर रूबेन एट अल ने क्यों ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज किया था? जस्ट टू कंफर्म, क्या होता है बच्चों, रिसर्च ऐसे नहीं होती. मतलब ठीक है, H2O की जगह H2S हो गया, एक बार प्रूफ हो गया, उसके बाद कोई दूसरा प्रूफ नहीं करेगा, ऐसा नहीं. दूसरे तरीके से उसने फिर एक बार कोशिश की, और मैं समझता हूं ये और कंफर्मेटिव हो गया ना कि हाँ, H2O की जगह आपने H2S लगा. ये भी तो डाउट हो सकता था कि वो जो H2S गैस है वो रिएक्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए उसने अपना सल्फर निकाल दिया और हाइड्रोजन को कहीं और से मिल गया होगा. मतलब अपने अपने तरीके से कुछ भी कयास लगाए जा सकते हैं, बट वो उन्होंने कंफर्मेटिव एक बार और टेस्ट किया और फिर O18 से कंफर्म होता है कि जो यहां लिया वही उधर पे निकला. संजना? ओके सर. ओके, यस सर. perfect. Essential requirements of photosynthesis. Visibility is clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Essential requirements of photosynthesis. Number 1 was what? That we completely done. Sunlight. Sunlight. What was the range? 360. 390. 760. 760 nanometer. Perfect. Yes, sir. And this range is visible light. This range is of visible light, is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. The second requirement, requirement number 2, first was the sunlight. The requirement number 2 is the water. अब मैंने प्लांट वाटर रिलेशनशिप आपको बता दिया. इंस्टेंट आंसर आई एक्सपेक्ट कि वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस comes through what? अरे कहां से? Xylem. Xylem. रूट टू, मतलब Leaf. सॉइल टू रूट जाने वाला है ना, सॉइल टू रूट जाने वाला है. एक्टिवली जाएगा कि पैसिवली जाएगा? Passively. Passively. तो मैं ऑस्मोसिस कह दूं. Yes, sir. Yes. इसके थ्रू जाने वाला है, जाइलम के थ्रू जाने वाला है. अग्री? Yes. Yes.
मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। और उसको खींचने वाला फोर्स कौन सा है, पुल या पुश? ट्रांसपिरेशनल पुल। पुल। शॉर्ट हाइटेड होगा तो ठीक है, पुश से भी काम हो जाएगा, बट पुल तो चलता ही रहेगा। तीसरी रिक्वायरमेंट बनती है दोस्तों CO2। CO2 की जो रिक्वायरमेंट है वो कहां से आती है? एटमॉस्फेयर। थ्रू स्टोमेटा। अग्री? अग्री? Yes, sir. Yes, sir. And I should write it is not respiration. ये रेस्पिरेशन है क्या उनका? No, sir. नो, क्योंकि रेस्पिरेशन तो उनका भी वैसा ही होता है जैसे हमारा है, ऑक्सीजन को लेना है और CO2 को छोड़ना है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. The fourth one requirement is what? Fourth requirement is what? Pigment. क्लोरोफिल, पिगमेंट। Pigment, chlorophyll. पिगमेंट के केस में बच्चों मैं आपको लिखाऊंगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और ये दोनों ही पिगमेंट का, क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी हो। मैं छोटा सा चार्ट आपको फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं, जो मैं भी बना के रखा हूं। वो चार्ट आपको बना लेना चाहिए। इन शॉर्ट वो बहुत मदद करेगा आपकी, क्योंकि ऑर्गेनल कौन सा है? Chloroplast. Chloroplast. मेरे साथ बनाते चलेंगे। क्लोरोप्लास्ट के 3 पार्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट में मैं 3 पिगमेंट आपको बता रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट तो ऑर्गेनल हुआ, उस क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनल में एक हो गया क्लोरोफिल। मेरे साथ लिखते चलेंगे। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बाद कैरोटेनॉइड एंड फाइकोबिलीन्स। chlorophyll in the green plants, carotenoids and phycobilins. These are the 3 pigments. These are the 3 pigments that are present in that organelle named as chloroplast. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Chloroplast, sir. क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है विच इज गिवन इन योर मॉड्यूल, मैं वहां पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा हूं बच्चों। दिस इज अ टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ टेडपोल स्ट्रक्चर। प्लीज ओपन योर मॉड्यूल, ओपन योर मॉड्यूल। उतना डिटेल में अपने को देखने का जरूरत नहीं है, बट वो टेडपोल स्ट्रक्चर है। टेडपोल स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सिंपल एक हेड होगा और उस हेड की एक टेल होगी। दिस इज कॉल्ड टेडपोल स्ट्रक्चर। Please go through the module. One is head, one is tail. Head जो होता है उसे कहते हैं पोरफायरिन हेड, केमिकल रिंग स्ट्रक्चर है पोरफायरिन। टेल जो होती है वो फाइटॉल टेल होती है। एक होता है पोरफायरिन हेड और एक होती है फाइटॉल टेल। जो पोरफायरिन हेड होता है, ये सवाल एक बार नीट में पूछा गया है, बट मैं लिखवा देता हूं, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत हमें है नहीं। स्ट्रक्चर में भी किसी से शेयर करवा लूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पोरफायरिन में जो है 4 पायरोल रिंग्स हैं, 4 पायरोल रिंग्स लिखते चलिए अभी। 4 पायरोल रिंग्स linked by methine bridge, linked by methine bridge, linked by methine bridge। अब ईच पायरोल, जो 4 पायरोल हैं उसमें ईच पायरोल, अभी लिख लें सारा समझ में आ जाएगा। ईच पायरोल has 5 atoms. Each pyrrole has 5 atoms, जिसमें that is 4 carbon and 1 nitrogen. 4 carbon and 1 nitrogen. 4 carbon जो है वो एक्सटर्नल है और 1 नाइट्रोजन है वो सेंट्रल है। अभी ऐसा लग रहा है कि रटना पड़ेगा, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए।
फाइटॉल टेल की बात करते हैं तो ये insoluble long chain of carbon atom, insoluble long chain, insoluble long chain of carbon and hydrogen, of carbon and hydrogen. अब इसके लिए any one of you have module? Any one of you? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Prapti, can you share that chlorophyll structure given in your module on my DC number? Yes, sir. Please share right now. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर वो 1n के नीचे क्या लिखा है? Central. थैंक यू सर. Carotenoid is lipid soluble. Carotenoid is lipid soluble. ये सब पूछे जाते हैं. Insoluble soluble. तो वही शब्द मैं लिखवा रहा हूँ. Only those words that may or may not be asked into NEET examinations. Lipid soluble that protects chlorophyll. Have you shared? Prapti, have you shared? Just a minute, this sharing. Protect from photooxidation. Therefore called as. सर प्रोटेक्ट्स के बाद क्या लिखा है? That protects chlorophyll. CHL मतलब chlorophyll. Chlorophyll from photooxidation. Therefore called as shield or protective pigment. Protective pigment. Sir, what is photooxidation? What is photooxidation? क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल. अभी और आगे धीरे धीरे स्टेप्स आएंगी. क्या होता है जब क्लोरोफिल की मैं बात करूं तो ये ग्रीन पिगमेंट जब सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर में आता है, तो मैंने आपसे कहा था ना कल कि डायरेक्ट एक्सपोजर होगा तो ऐसा होने की बजाय ऐसा हो जाएगा. प्राजक याद है? Perpendicular. परपेंडिकुलर. उससे होगा क्या कि वो जो है डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होगा और उसका फोटो ऑक्सीडेशन मतलब वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा. अदरवाइज क्लोरोफिल यदि खत्म हो गया, सनलाइट इतना तेज पड़ सकता है कि फोटो वो जो प्रोटीन वो तो पिगमेंट है, वो प्रोटीन पिगमेंट ही खत्म हो जाएगा क्लोरोफिल. तो फिर काहे का फोटोसिंथेसिस? प्राजक. Okay, sir. Thank you, sir. और जो फाइकोबिलीन. यस बोलिए. So shared. Yes. Phycobilin is water soluble. Phycobilin is water soluble. ये strongly bind to protein since strongly binds to protein, since strongly binds to protein, therefore called as biliprotein. Therefore called as biliprotein. Water soluble phycobilins, since they are strongly binds to proteins, therefore called as biliproteins. Students, understood the statement? Yes, sir. Sir, what does Yes, Billy mean? Sir, Billy मतलब. कुछ जोर से बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे. Sir, Billy मतलब. बिली मतलब, अरे वो तो फाइकोबिलीन्स का बिली लिया गया, कोई बिली अलग से नहीं लिया गया. वो पिगमेंट का जो नाम है फाइकोबिलीन, उसका बिली उठाया गया और प्रोटीन से एसोसिएटेड तो बिली प्रोटीन. बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, do you know? Yes, sir. That's why it is biliprotein. Understood? हाँ sir. हाँ sir. Perfect. This biliprotein may be of three types. Either it will be phycocyanine. Definitely cyanine है. What we expect, the color will be what? Blue. Blue in color. Perfect. The second one is
Phycoerythrine, what do you expect? Red. Phycoerythrine, what do you expect? Red. Red. And allophycocyanine, allophycocyanine, cyanine है तो ब्लू पार्ट तो थोड़ा सा रह गई, but that will be blue brown, brownish blue. Okay? Yes, sir. ब्राउनिश ब्लू या ब्राउन ब्लू मैंने यहां पर लिख दिया. So, अब मैं आपको स्ट्रक्चर यदि बताऊं बच्चों, पहले नोट कर लीजिए, प्लीज नोट, देन आई विल शेयर. Noted, doctors? 2 minutes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Project noted? Yes, sir. Perfect. Please take care of. मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं और क्या चल रहा है. एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हमारी चल रही थी. सनलाइट, वी आर डन विद दिस. कि सनलाइट जो होता है इसमें इफेक्ट्स भी बताए, सनलाइट की रेंज भी आपको बताई. वो लाइट रिएक्शन है जो ग्रेना में हो रहा है. उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट आपको बताया मैंने, वाटर, जो कि सॉइल टू रूट जाना है थ्रू दी पुल फोर्स और आई शुड से द ऑस्मोसिस. तीसरी रिक्वायरमेंट CO2 जो कि स्टोमेटा से जानी है, इट इज नॉट द रेस्पिरेशन. ये मैंने लिख दिया क्योंकि कंफ्यूजन ना हो. The fourth one is pigment, which is chloroplast. Basically, in the plastid part, plastid is chloroplastine. वो chloroplast में chlorophyll, carotenoid और phycobilin. These are the three pigments. This is the organelle in which there are three pigments: chlorophyll, carotenoid and phycobilins. ये जो phycobilins है, ये accessory pigment कहलाता है. Basically, इसे यदि मैं कहूँ तो this is accessory pigment क्योंकि कोई बहुत direct role play नहीं कर रहा है. So it is called as accessory pigment. But fine, मैंने आपको कुछ नहीं बताया वो accessory pigment के बारे में. मैंने आपको बताया कि वो वाटर सॉल्युबल है, ये लिपिड सॉल्युबल. और ये जो क्लोरोफिल है, इसका एक पार्ट इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. इसके यदि फॉर्मूले की बात मैं करूं तो मुझे फॉर्मूला भी अभी ध्यान आ गया. C20H39OH, C20H39OH. प्लीज नोट, C20H39 और OH. नोटेड? Yes, sir. और कैरोटीनाइड में भी, अभी कैरोटीनाइड की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो ये जो रेशो है वो बताने की जरूरत मुझे शायद, चली छोड़ी, जरूरत नहीं है. तो व्हाट क्लोरोफिल अबाउट, जिसका मेजर रोल है, दैट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल बेंड, क्लोरोफिल ए, व्हिच इज अ टैडपोल स्ट्रक्चर. टैडपोल स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक पतंग की तरह, काइट की तरह स्ट्रक्चर होता है. ये एक रहेगा हेड और ये रहेगी टेल. तो ऐसे जो है 4 पायरोल रिंग्स हैं जो एक दूसरे से मिथाइन ब्रिज से जुड़ी होती है. हर पायरोल रिंग में 5 एटम होते हैं, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन. तो सेंटर में नाइट्रोजन रहेगा और ये जो रहेगा पूरा हेड रहेगा. बात को समझिएगा, मैं इसी स्ट्रक्चर को अभी आपको दिखाऊंगा. दिस विल बी अ नाइट्रोजन इन द सेंटर एंड द हेड विल बी द पोरफायरिन हेड एंड दिस विल बी द फाइटॉल टेल. फाइटॉल टेल लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है. OH ग्रुप लगा हुआ तो अल्कोहल है डेफिनेटली. लॉन्ग चेन अल्कोहल, C20H39OH. और हेड ये रहेगा, टेल ये रहेगा. हेड पोरफायरिन रिंग है, कैसी है, क्या है, वो मैं भी आपसे शेयर करता हूं, which is shared by Dr. Bhandari. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा सा बारीक स्ट्रक्चर है, शायद समझने में दिक्कत जाए, लेकिन एक तरफ लिखा हुआ है पोरफायरिन हेड, दिख रहा है आपको?
यस सर। और Yes, sir. कितनी रिंग्स बोली थी मैंने? पायरोल रिंग कितनी है? 4 Four. 4 पायरोल रिंग। 4 एक मुझे थोड़ा सा एनलार्ज कर लेने दीजिए, पहले हेड की बात करते हैं। 4 पायरोल रिंग्स की अपन बात करते हैं ना। 4 पायरोल रिंग्स में सी 1 2 3 एंड 4, और सेंटर में देखिए सबके नाइट्रोजन है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। सबके अंदर की तरफ नाइट्रोजन था, है ना, और वहां पर एक सेंट्रल एटम, क्योंकि क्लोरोफिल है तो डेफिनेटली हमने मिनरल एलिमेंट्स में पढ़ा है मैग्नीशियम इज द मेजर कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल। रिकॉर्ड? Yes, sir. yes sir. रिकॉर्ड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. Yes. So these are the 4 pyrrole rings in which nitrogen is towards the center, 1 2 this 3 and this 4, and बीच में वो मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 पायरोल रिंग हो गई जो हमने लिखा हुआ था। टेटपोल स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊं। तो टेटपोल स्ट्रक्चर के केस में yes, can you imagine tadpole like structure? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Understood? Yes, sir. Yes, sir. अब जो अब हमने लिखा, ये स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, उसके लिए परेशान मत होइए आप, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको बस पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो है उसमें हेड का नाम, हेड रिंग कौन सी है? पोरफायरिन, और टेल कौन सा है? फाइटॉल। फाइटॉल, पोरफायरिन हेड और फाइटॉल टेल। परफेक्ट, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब आपको जो एक नई चीज मैंने बतानी है थोड़ी सी, जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा जो अपन ने लिखा है। इनफैक्ट 4 पायरोल रिंग्स अपनी अपनी कॉपी में नोट्स में देखिए, देयर आर 4 पायरोल रिंग्स लिंक्ड बाय मिथाइन ब्रिज। हर एक रिंग जो है वो मिथाइन ब्रिज से जुड़ी हुई है, और हर पायरोल में 5 एटम है, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। हर इसमें देखिए 5 कार्बन आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 सब में देखिए आपको दिखेंगे 5 कार्बन, और एक बीच में दिखेगा नाइट्रोजन। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। Yes, sir. अरे भाई, Yes. Yes. भाई कार्बन सेंटर की तरफ नाइट्रोजन दिख रहा है, और बाकी आप काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5, हर तरफ 5 आपको कार्बन मिलेंगे। और जो एक दूसरे से जुड़े हुए वो मिथाइन ब्रिज भी मैं आपको बताऊं। सॉरी, मिला मिथाइन ब्रिज? यस सर। अरे Yes, मिला? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं स्ट्रक्चर सर- पहले लिखा इसलिए दिया कि अब लिखने के बाद आपको समझ में आ रहा है। भाई टेटपोल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पोरफायरिन हेड समझ में आ गया, फाइटॉल टेल समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया कि जो पोरफायरिन रिंग है उसमें 4 पायरोल रिंग है, और हर पायरोल में 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है, और हर पायरोल रिंग मिथाइन ब्रिज से जुड़ी हुई है। वहां तक क्लियर है? कोई तकलीफ? सर हाँ बोलो। सर जो आपने फर्स्ट सर्कल किया है जो नीचे के साइड में, सर उसमें 2 डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड ना, तो तीनों ही सिंगल बॉन्ड है। क्या बोले? जोर से बोलो मुक्तीर। सर मिथाइन ब्रिज चाहिए ना, तो जो आपने हाँ। फर्स्ट सर्कल किया है नीचे के साइड, सर उसमें मिथाइन ब्रिज नहीं हो रहा है ना जो आपने सर्कल किया है? अरे मिथाइन ब्रिज ही है ना बेटा, वो जो HC लिखा हुआ है ना, इसकी बात कर रहा है ना, बराबर? हाँ हाँ सर, करेक्ट। अरे क्या ही केमिस्ट्री कर रहा है तू। यहाँ जो CH लिखा है इसको यहाँ H पकड़ना। हाँ सर। अब हाँ ठीक है? हाँ सर, यस। लेकिन क्या होता है बच्चों, उसी पॉइंट पर मैं आ रहा था। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, डायग्राम में देखिएगा, है ना, डायग्राम में जो है वो बता रहा हूँ, लाल स्पॉट को मत देखिएगा, डायग्राम को देखिएगा। जस्ट यस, प्लीज चेक दैट। जस्ट प्लीज चेक द डायग्राम। स्क्रीन पर देखते रहिए, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना इन डेप्थ अपने को जाना नहीं है, बट मैं आपको समझा दूं। कैन यू बिलीव और will you be agree if I'll tell you कि in this each pyrrole which has 5 atoms, 4 carbon, 1 nitrogen, nitrogen is inside, carbon is outside. Do you agree with this?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If these carbons, 4 carbons are outside and 1 nitrogen inside, that means I can number this from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See, you can see the number even over there in the structure. Got it? In each ring, there are 2 carbons mentioned. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मिला? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अरे Yes, sir. लिखे हुए ना, उसी में नंबर लिखे हैं। मैं इतना बारीक फाइन जाना नहीं चाह रहा क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी, बट आपको समझ में आना जरूरी है क्योंकि आपको ये पता लगे नंबरिंग दिया क्यों गया है। तो हर इसमें 1 2 दिया गया, उसमें 1 2 ही क्यों दिया गया? क्योंकि तीसरा वाला जो हर बार वो मिथाइन ब्रिज से जुड़ गया ना। फिर कुछ समझे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो सर. ध्यान से देखिएगा, बस बिल्कुल पूरा फोकस डायग्राम पे स्क्रीन पे रखिएगा जो मैं कह रहा हूं आपसे। सो दोस 4 carbons in each which are on external and nitrogen is internal, so those external 4 carbons are numbered 1 to 8 in given picture. 1 2 3 4 5 6 7 8. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Those 1 to 8 number में C1 C3 C5 and C8. Listen carefully. C1 C3 C5 and C8 are attached through methyl group. देख लीजिए, CH3 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 CH3. Yes. 1 3 5 8. Do you agree with this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यदि आप चाहे तो वहीं पर जहां आपके पास मॉड्यूल है वहीं लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में अपने नोट जहां भी अपन लिख रहे थे, चार्ट बना रहे थे, वहां पर भी चाहे तो लिख लीजिए आप, क्योंकि मैं डिटेल नहीं लिख पाऊंगा इसका। 1 3 5 8 ज्वाइंट विथ मिथाइल ग्रुप। अग्री? Yes, sir. अग्री? Yes. Perfect. Whereas C2 is attached with vinyl group, that is CH double bond CH2. दिख भी रहा है। नंबर 2 वाला जो है वो विनाइल ग्रुप है, CH CH2, तो उसको लिख दीजिए विनाइल ग्रुप। इनफैक्ट इसी में कर दीजिए, मॉड्यूल में कर दीजिए विनाइल ग्रुप। नोटेड? नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. C4 जो जुड़ा है बच्चों, दैट इज विथ इथाइल ग्रुप। C2 था मिथाइल, सॉरी C1 C3 C5 C8 था मिथाइल ग्रुप, दैट इज CH3। C2 था विनाइल ग्रुप, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2। C4 है इथाइल ग्रुप, दैट इज CH2 CH3। देखिए जरा। Yes, sir. परफेक्ट। अब सवाल ये कभी नहीं पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया कौन किससे जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन ये जरूर पूछा गया, ये जरूर पूछा गया जो इन्होंने भी नीचे हाईलाइट करके दिया हुआ है दोस्तों, दिस वन। क्या लिखा है स्टार लगा के? CHO इन क्लोरोफिल B। और वो स्टार कहां पर लगाया है? दिखा क्या? दिखा? तो बच्चों बस यही एक फर्क है क्लोरोफिल B और क्लोरोफिल A में। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट्स। C1 C3 C5 C8 ये सारे के सारे मिथाइल ग्रुप से जुड़े हैं। डू यू अग्री? Yes, sir. Yes, sir. बट बच्चों ये क्लोरोफिल A है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोफिल A है। यदि यही क्लोरोफिल B होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस थर्ड पोजीशन पर C3 पर एल्डिहाइड ग्रुप होता बजाय मिथाइल ग्रुप के। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. sir. You once repeat this statement. Yes, I am repeating the statement because only this statement can be asked. ये नहीं पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 किस पोजीशन से क्या जुड़ा है। हाँ, ये जरूर पूछा जाएगा कि what about chlorophyll B and chlorophyll A। क्वेश्चन आ जाएगा कि in which of the following the aldehyde group is present on the third position, and the answer will be what? Chlorophyll B. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. और नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है कि हेड और टेल के बीच में कोई कनेक्टर भी तो होगा ना दोस्तों। हेड और टेल के बीच में कोई कनेक्टर भी तो होगा ना। Yes, sir. अब ये हेड और टेल है तो पोरफायरिन हेड से कहीं ना कहीं टेल पे कोई जुड़ा तो होगा। तो बीच में जहां पर पोरफायरिन हेड और टेल है, इनके बीच की जो पोजीशन होती है 7th नंबर वाला जुड़ा हुआ है, देखो चेन से। देखिए जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो दो ही सवाल पूछे जाते हैं, बी और ए का डिफरेंस और हेड और टेल का कनेक्टर।
तो बी और ए का डिफरेंस समझ में आ गया, C3 पोजीशन पे डिफरेंस है, बी में वो एल्डिहाइड है और ए में वो मिथाइल ग्रुप है। समझे क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. अब CHO का नाम क्या है? एल्डिहाइड। CHO का नाम क्या है? एल्डिहाइड, बराबर। तो Yes. CHO जो एल्डिहाइड है वो ए नहीं है, याद रखने का कुछ ऐसा ही सामान्य सा तरीका, मैंने ऐसे याद कर लिया कि मेरा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड है तो नॉट ए, एल्डिहाइड है तो नॉट ए, तो फिर बात समझ में आ जाएगी कि एल्डिहाइड है तो बी, तो फिर मतलब मिथाइल है तो ए। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Sir, your voice was breaking. Will you please pardon the name of the connector? नेम ऑफ द कनेक्टर मैंने बोला ही नहीं अभी, मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि 7th नंबर वाला कनेक्टर है। मैंने आपको यह बताया कि बी और ए का डिफरेंस क्या है, केवल 2 ही चीजें पूछी जाती, ए और बी के बीच का डिफरेंस, तो वो आपको पता लग गया कि एल्डिहाइड जो है वो बी में होता है और मिथाइल जो है वो ए में होता है। और दूसरा पूछा जाता है कनेक्टर, तो कनेक्टर 7th नंबर से कनेक्ट होता है, ये पहला सवाल। और कनेक्टर होता कौन है, जो अभी गायत्री ने पूछा, तो इट इज propionic acid. It is what? Propionic acid. Understood? Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Yes, This one is propionic acid. ये 7th नंबर और ये टेल, ये 7th नंबर और ये टेल, और इनके बीच में कनेक्टर प्रोपियोनिक एसिड। अंडरस्टूड बच्चों? Yes Yes, sir. sir. yes, sir. यस सर। तो ये क्लोरोफिल की कहानी में कोई कंफ्यूजन अब नहीं बचा, दैट इज फॉर श्योर। अग्री? Yes. Yes, sir. अग्री? परफेक्ट। अब एक 2-3 स्टेटमेंट मैंने आपको बताया जो पूछे जाते हैं और मुझे इंडेप्थ जाने की जरूरत नहीं। पहला मैंने बता दिया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि 3rd पोजीशन पर किसमें एल्डिहाइड है और किसमें मिथाइल, पहली चीज। दूसरा पूछा जाएगा हेड और टेल कनेक्ट किस नंबर से होते हैं, तो वो कौन से नंबर से? 7th। और वो किस कंपाउंड से होते हैं, तो दैट इज थ्रू प्रोपियोनिक एसिड। एक सवाल और पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल माइनस Mg, ऐसा भी होता है कि क्लोरोफिल में से बीच का Mg यदि निकाल दिया जाए तो नाइट्रोजन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और क्लोरोफिल का ये Mg यदि निकाला जाए तो जो कंपाउंड नया बनता है वो भी अपने आप में एक पिगमेंट है, और उस पिगमेंट का नाम है थियोफाइटीन। थियोफाइटीन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, क्लोरोफिल माइनस Mg इक्वल्स टू थियोफाइटीन। नोटेड? नोटेड डॉक्टर्स? Yes, Yes, sir. yes, sir. नोट्स में लिखो, क्योंकि मॉड्यूल को तो बाद में क्लब करना ही है अपने को, तो नोट्स में लिखना कभी भी बेटर रहेगा। डन? Yes, sir. Yes, sir. कैरोटिनॉइड जो है वो कैरोटीन है, लाइकोपीन में होता है, कैरेट में होता है, हमें पता है। फाइकोबिलिन जो एक्सेसरी पिगमेंट है वो वाटर सॉल्युबल है, ये भी हमने नोट कर लिया। तो पिगमेंट वाली कहानी मेरे पार्ट पे डन है। डू यू एग्री विद दिस? Yes, Yes sir. sir. डन बच्चों? अरे डन? Yes, sir. 2-3 बातें जो फाइनल नोट करके हुई, जो मैंने आपको लिखा देनी चाहिए, मतलब आपने लिख ली है। नंबर 1, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए क्या डिफरेंस है और किस पोजीशन पे डिफरेंस है? सर 3rd पोजीशन। Aldehyde group. Position of methyl position. A में मिथाइल होता है, B में एथाइल। एट विच पोजीशन? Third. 3. Third. तो पहला तो ये नीट का सवाल हो, सीधा सीधा सवाल बता रहा हूं कि आपको बस सीधे यही सवाल आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो पहला सवाल तो मैंने ये बता दिया आपको कि वो 3rd पोजीशन पर होने वाला है। चौथा मैंने आपको ये बता दिया, यदि क्लोरोफिल में से Mg को माइनस कर दिया जाए तो क्या बनता है? थियोफाइटीन। Purified. ये मैंने आपको बता दिया।
दूसरा मैंने आपको बता दिया कि हेड और टेल जो कनेक्ट होते हैं, हेड और टेल वो किस नंबर पर होते हैं? 7 वो किस कंपाउंड से होते हैं? Propionic acid. Propionic acid. प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। नोटेड? Yes, sir. नोटेड? एक मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट बता ही दिया है, ये भी पूछा गया है कुछ एग्जाम्स में, शील्डिंग और प्रोटेक्टिव पिगमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया है, जो कैरोटीनॉइड मतलब जो क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। ये भी मैंने बता दिया कि ये इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन्स हैं, ये लिपिड सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये भी अपना डिस्कस हो चुका। मैं वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं जिसमें आपको जरूरत पड़ सकती है। परफेक्ट। यस सर। और हाँ, कैरोटीनॉइड की जहां तक मैं बात करूं तो कैरोटीनॉइड की एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, कैरोटीनॉइड नाम और स्पेलिंग में देखो, कैरोटीनॉइड, कैरोटीन का ऑक्सीजन डेरिवेटिव, कैरोटीन का ऑक्सीजन डेरिवेटिव, ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन। तो डेफिनेटली कैरोटीन का यदि मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो कैरोटीन का फॉर्मूला होता है C40H56। कैरोटीन की यदि मैं बात करूं तो C40H56, ये कौन हो गया? कैरोटीन। तो डेफिनेटली उसमें जो ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। कैरोटीनॉइड का क्या हो गया? C40H56 और O2, xanthophyll। अंडरस्टूड? यस सर। यस। xanthophyll compound। व्हाट? xanthophyll। नहीं समझा, क्या बोले प्रथमेश? Sir, that name is xanthophyll। नहीं समझे, क्या बोल रहे? नेम इज व्हाट? सर वो ज़ैंथोफिल बोल रहे हैं। अच्छा, ज़ैंथोफिल, वो कैरोटीनॉल्स होता है बेटा, ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, तो वो दैट इज ज़ैंथोफिल। बिल्कुल ठीक है, उसने उसका नाम बताया ज़ैंथोफिल। और ये ज़ैंथोफिल जो मिलता है ये यूजुअली अर्ली लीव्स में या जो थोड़ी सी रेड कलर की होती है उसमें मिल जाता है, बाकी तो फिर बाद में वो ग्रीन हो जाता है। बच्चों नोट किया आपने? Yes, sir. Yes, sir. Sunlight is done, water is done, CO2 is done, pigment is done. Agree? Yes, sir. अब बिल्कुल पेन डाउन कर देंगे क्योंकि अब समझने का काम चलेगा। नोट अभी नहीं करना है, इसको तो मैं शेयर कर दे रहा हूं, इसको ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूं, उसके बाद पेन डाउन करना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपको देनी है और ये बताना है कि कितना कंसेप्चुअली से आप पढ़ना पड़ेगा आपको। Just sharing the image. Should I erase this? Yes sir। यस सर। Yes, sir. अब बच्चों मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने कहा कि पेन डाउन कर दीजिए। यकीन मानिए पेन डाउन नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाएंगे, इसलिए जितना मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और जितने सवाल कर सकते हो उतने सवाल करो, मुझे कोई समस्या नहीं। समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर तो ऐसा है जो मैं चाह रहा था कि केवल ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाता, तो पढ़ाने का मेरा मजा ही अलग होता, बट ठीक है। एनीवेज हमें मुद्दा है कि अब समझ में आने वाली बात है। डेफिनेशन डन? Yes, Yes sir. Yes, sir. इक्वेशन डन? Yes, sir. Yes। Yes, sir. रिक्वायरमेंट डन? Yes sir। Yes, sir. Site of photosynthesis done? Yes sir। Yes. Yes, sir. History is done? Yes, Yes sir. sir। Yes, sir.
Perfect. So now only the thing is that is remaining is what? Mechanism. Mechanism of photosynthesis. बच्चों बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, सजेस्ट भी कर रहा हूं, प्लीज बी fully focused and concentrated towards the lecture only. सब पेन वेन बंद कर दीजिए और ध्यान से समझिए. मैंने मैकेनिज्म बतानी है, ओवरऑल मैकेनिज्म यदि मैं बताऊं फोटोसिंथेसिस, तो दिस फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इन टू phases. One is energy generating and one is biosynthetic pathway. जो एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस है, दिस इज नोन एज लाइट रिएक्शन, and this is known as dark reaction. This light reaction is taking place where? In Grana. grana. And it is in Stroma. Since it is energy generating in the presence of sunlight, because it is a light reaction, also known as, on the name of the scientist, this is also known as what? Hill reaction. This is known as Hill reaction. And this dark reaction, since it is two different patterns are there, so either known as Calvin cycle or known as Hensley-Krebs cycle. There are two names, Calvin cycle and Hensley-Krebs cycle. Perfect. Two scientists क्यों? क्योंकि Calvin होता है C3, वो बताऊंगा अलग अलग, और ये होता है C4, साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, उसको जानने की जरूरत नहीं अभी. मैं बात कर रहा हूं लाइट रिएक्शन की. लाइट रिएक्शन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 101% आपको क्वेश्चंस निकलने ही चाहिए. लाइट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन ग्रेना. सो शुड आई प्रिपेयर a granule thylakoid? Will it be fine? Yes, sir. Yes, sir. This is double layered but single membranous. Agree? Yes. Yes, this- yes, This will be the lumen of thylakoid. Agree? Yes, sir. Yes, sir. And this will be the thylakoid membrane. Agree? yes, Here complex number 1 is there, which is known as what? PS PS1. 2 बताया था मैंने. और बाहर की तरफ होता है कौन? PS1. बीच में होता है यहाँ पर कौन? Cytochrome B6F. B6F. और रेगुलर इंटरवल पर होता है चौथा कॉम्प्लेक्स कौन? ATP synthesis. ATP सिंथेटेस. चलिए, तो ये भी लोकेशन आपको क्लियर होगी. अब मैं बात कर रहा हूं, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइट रिएक्शन में दो ही चीजें हो रही. एक हो रहा है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. एंड द सेकेंड रिएक्शन, absorption like a photolysis of water. Agree? Yes. अब मुझे पता है कि ये बताने की जरूरत नहीं आपको कि when photolysis of water will takes place, oxygen will be released as pranavayu and that hydrogen will move into the stroma to reduce the carbon dioxide. Agree? Yes, sir. Yes, sir. अंकुर समझ में आ रहा है? अंकुर, अंजलि, अदिति, अर्जुन, अरणिता, गितेश, इशिता. yes, sir. परफेक्ट. सो मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये H2O जो जाएगा, यही H2O का ऑक्सीजन जो है ये निकल जाएगा. दिस हाइड्रोजन विल मूव फॉर दिस प्रोसेस. और ये प्रोसेस दो तरीके से चलती है जो मैं बाद में बताऊंगा, एक C3 और एक C4, और शायद जरूरत पड़ने पर एक CAM. वो उस दिन भी मैंने आपको बताया था, बट दैट आर डिफरेंट थिंग. आज मुझे पूरा फोकस करना है लाइट रिएक्शन पर. तो मैंने आपको ये बताना है कि ये जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन में वाटर का टूटना है, और वाटर के टूटने से मैं इक्वेशन भी लिखा देता हूं जो कि दिया गया है आपके इसमें ही, एनसीईआरटी में ही देखकर लिख देता हूं. दिस इक्वेशन इज 2H2O breaking down into 4H plus O2 plus 4 electrons.
दिस इलेक्ट्रॉन्स, उसको यहां लिखने के बजाय, क्योंकि नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे PS2 के पास अपने लिख दिया उसे। Two H2O will give 4H plus plus O2 plus 4 electrons. These 4 electrons, try to understand, मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूं आपको। ग्रेना का थाइलाकॉइड, लाइट जनरेटिंग, लाइट रिएक्शन इन ग्रेना, लाइट एब्जॉर्ब हुआ। अब लाइट कहां एब्जॉर्ब हुआ ये आपको पता है। लाइट कहां एब्जॉर्ब हुआ? क्लोरोफिल। यस और नो? यस यस सर। Yes, तो वो sir. एब्जॉर्ब करने वाला ये ग्रेनाइट था। उसके जो दो पिगमेंट थे PS1 और PS2, PS1 जो एक्साइटेड स्टेट में जाता है या PS2 जो एक्साइटेड स्टेट में जाता है बच्चों, PS1 और PS2 की वेवलेंथ दोनों की अलग अलग है। मतलब मेरा कहने का कि जब भी लाइट सनराइज जैसे ही होगा तो PS1 एंड PS2 दोनों ही थाइलाकॉइड के कॉम्प्लेक्सेस हैं, सो दे विल एब्जॉर्ब द लाइट, they will absorb the light, and since they will generate the energy, so called as light harvesting complex. अब होता क्या है, जैसे ही लीफ की सरफेस पर सनलाइट पड़ा, as soon as the sun rays or radiant energy reaches to that leaf or the palisade tissues or the mesophyll cells or the granule thylakoid, the PS1 and PS2 move into the excited state. PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। क्यों एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं? क्योंकि जैसे ही सनराइज हुआ, वाटर टूटा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज रिसीव्ड बाय PS2. This electrons is received by PS2 and PS2 is get excited and those electrons are received by pheophytene. याद आया कुछ अभी 5-7 मिनट पहले? Out magnesium. यस सर। यस सर। Chlorophyll minus Mg. Chlorophyll minus Mg. That is what? Pheophytene. दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अगला स्टेटमेंट है कि whatever the water molecules are breaking down here, those electrons are received by PS2 and that PS2 get excited at wavelength आपसे पूछी जाती है, तो PS2 excited state में जाता है at 680 नैनोमीटर, whereas PS1 at 700 नैनोमीटर. सो सनलाइट की वेवलेंथ जितनी भी आएगी 680 और 700 वाला पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा क्योंकि ये 700 है, वेवलेंथ ज्यादा, ये पहले जैसे ही सनराइज होता है दोस्तों। तो मैंने आपसे कहा था कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से, रेड का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होने की वजह से रेड आपको ज्यादा जल्दी दिख जाता है। डू यू एग्री विद दिस? Yes. Yes, sir. तो वो जो सिस्टम थे PS1, PS2, ये PS1 और PS2 दो फोटो सिस्टम्स हैं। फोटो सिस्टम दैट रिसीव्स द फोटॉन्स, since it is present on the thylakoid, so they receives the photon, and since water is breaking down, that electrons are received by PS2, not by PS1, because as the sun rises, PS1 start itself, PS1 को किसी वाटर के टूटने और उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, PS1 अपने खुद के ही इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट कर देता है। सो मैं यहां पर बनाऊंगा PS1 जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा, दिस इज PS1 that works on at P700, PS2 and P680. As soon as sun rises, water break down, electrons are received by PS2, those electrons are given to the next one, given to the next one, given to the next one, and this is electron transport chain. Simply this is electron transport chain. ठीक वैसे ही जैसे हम घर में कभी फंक्शंस में बढ़िया सा खेल खेलते हैं, म्यूजिक ऑन करते हैं और वो कुशन को, पिलो को पास करते रहते हैं, और जहां पर म्यूजिक रुक जाता है वो उसको फिर गाना बजाना जो करना है वो करना पड़ता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पास ऑन होता रहता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवे को, वो चलता ही रहता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इटसेल्फ। वो कब हुआ? सनराइजेस, बहुत लेमन की भाषा में बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स, कि जैसे ही सनराइज हुआ, थाइलाकॉइड पर जैसे ही वो रेडिएटिंग एनर्जी पड़ी, उसका इलेक्ट्रॉन, उसका वाटर मॉलिक्यूल टूटा, वो वाटर मॉलिक्यूल टूटा तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय PS2 जो कि एक्साइटेड स्टेट में आ गया था क्योंकि 680 की वेवलेंथ वहां तक आ गई थी। 680 की वेवलेंथ क्यों? क्योंकि उसका अपना कलर है वहां पर वैसा जो 680 को सबसे ज्यादा लेता है। वैसे रेंज होती है 390 to 760,
उसके बीच में ही है 680। तो PS2 एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो नेक्स्ट ए को देगा, बी को देगा, सी को देगा, सी डी को देगा, डी ई को देगा, ई एफ को देगा, और ये सिस्टम चलता है। और ये सिस्टम तब तक चलता रहता है बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं P700 को। बात को समझिएगा, जो कि PS2 है, सॉरी PS1 है, ये दे दिए जाते हैं जो कि काम कर रहा है एट द रेट 700 नैनोमीटर। This was functional on P680, this was on 700. So sunrises, water breakdown, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, sunrises, water breakdown, electrons are received by PS2, get into excited state, received by X, received by Y, received by Z, and ultimately given to the PS1. Ultimately given to the PS1, though PS1 is not in hurry, or PS1 is not dependent on the electrons given by PS2, because it is having itself some electrons, these electrons moving to the top level and revert back to the PS1. Revert back to the PS1. Repeating my statement. Electron that are excited from PS2, the electron that are excited from PS1, moving back to the PS1. Moving back to the PS1. Just try to understand. थोड़ा सा मैं इसका मार्जिन बनाता हूं ऊपर से। सर वो लिखना बाकी था। हाँ एक मिनट लिख रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट, मैं उसको लिख रहा हूँ, थोड़ा मार्जिन बना रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें दो रिएक्शंस हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, मैं डेल्टा का साइन बनाता हूँ हीट के लिए, और दूसरा था फोटोलिसिस ऑफ वाटर, उनका यही लिखा था हमने। ये ऑक्सीजन निकल गई थी प्राणवायु के लिए, और ये हाइड्रोजन गया था इधर की तरफ। यस और नो? अग्री? Perfect. What I'm telling you, repeating my statement again, this sun rises, water break down into hydrogen, protons, oxygen and electrons. Electrons are received by PS2. Actually PS2 is dependent on the electrons received from the breakdown of water, but PS1 is not dependent on the photolysis of water and independently can run its own cycle or own system, that is PS1 or P700. But P680 was dependent on the electrons of water, photolysis of water. So when the water will be break down, this will be activated and will give its electron to the next one, to the next one, to the next one, ultimately to P700. But P700, don't assume that this electron which is moving into excited state is coming from PS2. No, those electrons which are excited from P700 moving back to P700. So they are running in their own system. This is cyclic one. But the electrons obtained from photolysis of water moving to the PS2, given to some electron carriers and ultimately sent to the P700. And what P700 does with these electrons received from this one, it is excited to the another, it is received by the another molecule, suppose M molecule, and this is, repeating my statement, the electrons which are excited from PS2, which is actually not of PS2, actually the photolysis of water. Understood? Understood? Yes. These electrons which are the product of photolysis of water received by PS2, received by different electron carriers, given to the P700. P700 has its own electron system, cyclic system, but the electrons which are received from PS2 given to another molecule, suppose M. This is M, and we know PS1 lies outside the membrane. PS1 which lies outside the membrane, what PS1 does with these electrons, that is converted nicotinamide, adenine,
dinucleotide phosphate with nicotinamide adenine dinucleotide hydrogen phosphate. That means it is reduced. It is reduced. It is reduced by taking the electron from PS2. PS1 was not utilizing for their own. PS1 वो अपने लिए बिल्कुल खर्च नहीं कर रहा था. भाई मेरे पास मेरे हैं, मैं तो उसे रोटेट करता रहूंगा. तुम जो इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे रहे हो PS2, वो मैं तुम्हें एक काम करके दे सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास एक एंजाइम नहीं है जो मेरे पास है, और वो एंजाइम है NADP रिडक्टेज. वो एंजाइम है इसके पास, दैट इज NADP रिडक्टेज. सो PS2 मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूं. मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, मैं साइक्लिक सिस्टम में अपना काम कर सकता हूं, और यदि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन देते हो तो मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूं कि मेरे पास NADP रिडक्टेज है, और तुमने जैसे मुझे कहा था कि मेरा काम है या तो अंदर प्रोटॉन को बढ़ाना या तो बाहर प्रोटॉन को कम करना, तो मैं बाहर के प्रोटॉन को कम करने में आपकी मदद करता हूं. मैं मेरे इस एंजाइम की सहायता से बाहर से H+ लेकर मैं उसे रिड्यूस कर देता हूं NADPH में. यदि अग्री हो तो मुझे इलेक्ट्रॉन दो. तो PS2 सोचता है यही तो मैं चाह रहा था. यही तो मैं चाह रहा था कि प्रोटॉन जो है अंदर कम हो जाए, सॉरी अंदर ज्यादा हो जाए, बाहर स्ट्रोमा में कम हो जाए, और प्लस ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि तुमने मुझे एक बहुत बड़ा एनर्जी मॉलिक्यूल बनाकर दे दिया, दैट इज NADPH. दैट इज NADPH. कुछ समझे क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, अरे sir. कहानी समझ में आ रही है कुछ? Yes, sir. Yes. मैं बहुत जैसे बिल्कुल 10th के बच्चों को बताया जाता है वैसे मैं बता रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस की शुरुआत यहां से हुई. सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, और सनराइज जब हुआ तो वाटर ब्रेक डाउन. When water break down, the thylakoid will receive the photons. There are two photosystems, photosystem 1, photosystem 2. So photosystem 2 will receive those electrons, which is the product of photolysis of water, will play a electron transport chain, will ultimately give to the P700, which is already into excited state, and they are in the cyclic manner, they are rotating their electrons. They need not any electrons from outside, but PS2 is still giving to PS1. Those electrons are moving into excited state, or I should say not in excited state, but when they are moving in excited state, they have an enzyme NADP reductase, which can reduce nicotinamide adenine phosphate into dihydrogen phosphate by reducing the protons outside the lumen. तो उसने डबल तरीके से मदद कर दी. कहानी समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल उसमें एक और आता है. अब सवाल एक और आता है जसमिन. एक और सवाल आता है कि should I say the PS2 is a non-cyclic photophosphorylation? Non-cyclic. But PS1 is a cyclic phosphorylation. Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट आपने यस सर तो बोल दिया, आपने ये नहीं पूछा कि सर आपने इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा. फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा? तो जिंदगी भर याद रखिए जब तक आप मेडिकल साइंसेस पढ़ रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का ऐड होना. फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का ऐड होना, और एनर्जी सारी फॉस्फेट में ही होती है. हमने पढ़ा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमने पढ़ा है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट plus 1 inorganic phosphate gives adenosine triphosphate. So adenosine diphosphate का हो गया phosphorylation, मतलब उसको मिल गया phosphate, तो वो बन गया डाइफॉस्फेट को छोड़कर ट्राइफॉस्फेट, which is an energy molecule. Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जहां भी बच्चों फॉस्फोराइलेशन वर्ड आएगा, जहां भी फॉस्फोराइलेशन वर्ड आएगा, मेरी बात ध्यान कर लीजिएगा कि सर ये एनर्जी बनने की बात कर रहे हैं. फॉस्फोराइलेशन, ये सर एनर्जी बनने की बात कर रहे हैं. तो हो गया भाई फॉस्फोराइलेशन. और क्यों हो गया? ये बन तो गया निकोटिनामाइड एडेनिन डाइहाइड्रोजन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. तो ये फॉस्फोराइलेशन हो गया
NADP का रिडक्शन भी हो गया, फॉस्फोराइलेशन भी हो गया, और ये बन गया एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। प्लस ये बताना ही मैं भूल गया आपको कि ये साइक्लिक वे में जब चलता है दोस्तों, तो यहां पर ये भी बनाता है एक ATP। डाइफॉस्फेट से मिलकर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलता है तो बनता है ट्राइफॉस्फेट। तो सवाल ये हुआ कि जब ये साइक्लिक मैनर में चलेगा, तो केवल क्या बनाएगा? ATP। लेकिन जब ये नॉन साइक्लिक मैनर में चलेगा, तो बच्चों दोनों बनाएगा, एक बनाएगा ATP और प्लस ये बनाएगा NADPH2 या NADPH। बात को समझिएगा क्यों मैं इसे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको बताना चाह रहा हूं। रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, sun rises, water breakdown, electrons are received by PS2, those electrons are enter into electron transport chain, ultimately given to P700, but while they giving it to P700, they itself produce 1 ATP. But when those electrons given to P700, this is reduced into NADPH2 because they have an enzyme, and this NADPH2 is a big energy molecule. So when PS2, the electron enters into PS2, repeating statement, when electron is entering into PS2, it is a non-cyclic photophosphorylation. In the presence of photon, since it is phosphorylated, so called as photophosphorylation. But when it is about PS2, it is non-cyclic photophosphorylation. But where it is comes to P700 or PS1, it is cyclic photophosphorylation. Do you agree with this? Yes, sir. Very interesting process. अब ये जो मैंने आपको बताया बच्चों, ये स्कीम, क्या आपको यहाँ कुछ एक अल्फाबेट दिख रहा है क्या? Yes, sir. And Yes, Z. sir. N. Z. तो डॉक्टर स्पंदन को Z दिख रहा है, मैं यहाँ पर N बताना चाह रहा हूँ। N. नितिन पटेल का, मैं And नितिन sir. पटेल का N बताना चाह रहा हूँ, आप Z देख रही हैं मैडम, कोई बात नहीं। लेकिन आपने Z इसलिए कहा क्योंकि बुक्स में Z लिखा गया है, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी चल रही होगी। N अल्फाबेट तो दोस्तों आपको 2 साल काम आने वाला है। N अल्फाबेट की जहां तक बात है, वो तो 2 साल नहीं, जिंदगी भर काम आ सकता है यदि आप चाहे तो। जरूर, ईश्वर न करे जरूरत पड़े, बट पड़ी तो जिंदगी भर काम आ सकता है ना। बट यहाँ की यदि मैं बात करूं तो ये ऐसी स्कीम नहीं चल रही है ना, क्योंकि ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक चल रहा है वो किस पे चल रहा है? दिस इज ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यस और नो? Yes, sir. इसलिए Yes. इस चेन को ऐसा बताया जाता है। सो दिस इज व्हाट Z scheme. Understood? Yes. Yes. So PS1 and PS2 together forms a scheme that is what Z scheme. समझे क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, But sir. let me very clear again. वाटर के टूटने से इलेक्ट्रॉन किसने लिए थे? PS2 या PS1? Yes. PS2. तो PS2 ने वो इलेक्ट्रॉन किसको दिए? PS1. PS1. P700 ने उसका क्या बना दिया? NADP. PS1 ने PS2 के लिए हुए इलेक्ट्रॉन्स को इधर पहुंचाया, इधर नहीं लाया। इधर जो आए थे वो तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स आए थे। अग्री? Yes. Yes. Yes, sir. तो ऐसा होता है दोस्तों कि एट ए टाइम PS1 और PS2 दोनों की जरूरत नहीं है ना। एट ए टाइम इधर या तो PS1 चलेगा या तो PS2 चलेगा, क्योंकि जब P700 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, भाई जब तक सनराइज हुआ P680 पर वेवलेंथ नहीं आई, वो P700, और वो वेवलेंथ कैसे नहीं आई? भाई मैंने आपसे कहा विबग्योर, पहले आसमान कैसा दिखता है? Red. रेड। अब रेड की वेवलेंथ कितनी है? 760। अग्री? Yes. Yes, sir. यस। तो यहां से शुरू होगा और इधर तक जब तक वो आएगा 360 मतलब 680 तक जब तक आएगा, तो P700 अपना साइक्लिक तो चलाता ही रहेगा। P700 जब अपना साइक्लिक चलाता रहेगा, अब यदि P680 ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो अपना साइक्लिक चलाना बंद कर देगा,
क्योंकि साइक्लिक चलने से केवल एक एटीपी मिल रहा है और नॉन साइक्लिक के चलने से एक एटीपी और एक NADPH2 भी मिल जा रहा है। अग्री? यस सर। Yes, Yes, sir. मतलब means जो PS1 है वो अपने इलेक्ट्रॉन से एक एटीपी बनाता है क्या? हाँ, PS1 अपना, देखिए P700 प्राप्ति पहले बेटा रेड की हायर वेवलेंथ पहले आएगी ना, इसलिए तो रेड दिखता है ना आपको। Yes, यस और sir. नो? परफेक्ट। तो P700 वाला एक्साइटेड हुआ, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। यूजुअली ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरियाज में, एल्गीज में P700 ही चलता है, इसमें 680 नहीं चलता। तो P700 की बात करूं तो वो चलता रहेगा, एटीपी बनता रहेगा, बराबर? Yes, sir. और अगर PS2 ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो NADPH भी बनेगा। परफेक्ट, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। अब 2 मिनट के लिए समझो, और कोई डाउट हो तो निकालो। Excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज। So we can say that the number of electrons at P700 is constant, means of P700. हाँ, बोलिए। Sir, so can we say that the number of electrons which belong to P700, they will be a constant because they are not getting used up. They are not used, they are used up ना मैडम, वो यूज्ड अप हो रहे हैं और वापस उसको बनाकर कंज्यूम होकर वापस, जैसे एंजाइम बाहर निकलता है ना गायत्री, Yes, sir. बस ठीक वैसे ही हो जाते। तो ठीक है, आपने दी वर्ड कहा कि वो यूज्ड अप नहीं हो रहे हैं, तो ठीक, आई अग्री, क्योंकि वो वापस उसमें आ जाता। अग्री? But same is not the case with PS2 ना, because उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस नहीं आते। बिल्कुल ठीक, इसलिए तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कह रहे हैं ना मैडम। Yes, sir. Thank you, sir. बच्चों ये समझ में, कहानी समझ में आ रही है? अभी लाइट रिएक्शन की एब्जॉर्प्शन हुआ और एब्जॉर्प्शन फोटोलिसिस हुआ, फोटोलिसिस से कितनी बड़ी कहानी होगी, पानी के टूटने से कितनी बड़ी कहानी होगी। देखिए, लाइट को एब्जॉर्ब किया, पानी टूटा तो इलेक्ट्रॉन निकले, PS2 ने लिए, PS1 को दिए, उसके पहले एटीपी बनाया, PS1 को दिया, PS1 ने उससे और NADPH2 बना दिया। यहां तक कहानी क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अंजलि, अदिति, अर्पित, सर हाँ बोलो। सर PS1 और PS2 ये दोनों एक साथ चलेंगे क्या, एक ही एक बार? अरे अभी बोला ना बेटा मैंने, पहले कौन सा चलेगा? PS1, क्योंकि P700 है ना उसकी वेवलेंथ। अर्पित, अग्री? ओके सर, यस। शुभम रोथे, सानिका कासार, समझा? पलक संधान, यस सर। Yes, हाँ sir. बोलो। सर अगर साइक्लिक होगा तो हम्म। P700 ही वहां पे वर्क करेगा, और नॉन साइक्लिक होगा तो P700 और P680 दोनों काम करेंगे ना? क्या बात है, कौन बोला? कौन बोला? सानिका का सर। सानिका, वेरी नाइस बेटा, यही सवाल आने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ रखी। मैं PS1 और PS2 में डिफरेंस लिखने वाला। तो PS1 और PS2 में मुझे लिखना है PS1 दोनों का पार्ट है, पार्ट ऑफ बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अग्री? Yes, sir. यस यस सर। जबकि PS2 किसका पार्ट है? Non-cyclic. Only non-cyclic. परफेक्ट, वेरी नाइस सानिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यदि समझ में आया है तो इसका डिफरेंस भी बनेगा। एक और डिफरेंस कोई बताओ? Sir, the विदिशा, PS. विदिशा, वैष्णवी मालोड़े, विदिशा, प्रथमेश महाजन, वैष्णवी मालोड़े, तन्मय, Yes. श्रेयस, बोलिए, आंसर बोलिए। Sir, the Sir, electrons. may I tell? एक मिनट बेटा गायत्री, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? Sir, Omkar. अब बोलो। Sir, the electrons are of its own in PS1 and the electrons are from H2 in PS2. फिर से ओमकार, नहीं समझा। सर जो इलेक्ट्रॉन्स है PS2 में वो H2O के, और जो इलेक्ट्रॉन्स PS1 में वो उसके खुद के। मतलब भाई ऐसा कह दूं ना ओमकार भाई, मैं ऐसा कह दूं ना कि PS1 वाला जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, चलेगा? Yes, sir. अरे चलेगा? Yes, यस sir. सर। डिपेंडेंट ऑन वाटर, चलेगा? Yes, sir. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। शुभम रोते, पलक संधान, मुग्धा धवलकर,
मृदुला गायधनी, आंसर दो भैया, ऐसे शांत नहीं बैठो। यस सर। गुंजन, काव्य, लारण्या, यस सर। बोलिए आंसर। एक और डिफरेंस बताइए, PS1 और PS2 में एक और डिफरेंस बताइए। सर PS1 में एक ही ATP मॉलिक्यूल बनता है और PS2 मतलब वो जो नॉन साइक्लिक है उसमें 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी DPH एंड ATP। बहुत बढ़िया। PS1 की केवल ATP की कहानी है, जबकि PS2 की जो कहानी है दैट इज ATP प्लस NADPH2। अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और कोई डिफरेंस छूट रहा है क्या मुझसे? एक और डिफरेंस। Sir, may I tell? हाँ बोलिए। Sir, PS1 has the enzyme NADP reductase, which is not present with PS2. परफेक्ट, NADP रिडक्टेज, बहुत बढ़िया, जो कि PS2 में नहीं है। एक और बच रहा है, एक और बच रहा है। सर PS बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए भाई। Sir, PS1 gets activated first by red light. नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है मैडम कि वेवलेंथ जो है वो क्लाउडी एरिया की वजह से भी फर्क पड़ता है, वो अपन बात नहीं करें। सिंपल एक डिफरेंस तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। वन इज एक्टिवेटेड एट 700, वन इज एक्टिवेटेड एट 680। यस और नो? यस सर। अब एक कहानी तो ये समझ में आ गई। अब क्या मैं ये भी कर सकता हूं, क्या मैं इसका वाइस वर्सा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस लिख सकते हैं क्या? यस सर। साइक्लिक में क्या लिखूं? ATP PS1। अरे PS1 ओनली। हाँ यस सर। और इसमें both PS1 and और इसके सारे पलट दो भाई। साइक्लिक इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। यस और नो? Yes. तीसरा हो गया, इसमें केवल क्या बन रहा है? ATP. और इसमें क्या बन रहा है? ATP plus NADPH. परफेक्ट। इसके पास कौन सा साइक्लिक वाले में, साइक्लिक से जो बन रहा है उसमें नो एंजाइम, और इसमें क्या हो रहा है? एंजाइम कौन सा? NADP reductase. चलिए परफेक्ट। यानी आज की कहानी इतनी तो आपको समझ में आ गई दोस्तों, कि जो अभी तो मैं पाथवे पर पहुंचा नहीं, लाइट को एब्जॉर्ब किया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, और उसकी वजह से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन चल रहा है। अब सवाल यहाँ पर कहानी ऐसी बनती है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते कैसे, वो LHCs क्या होते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC1 एंड LHC2, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट। अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होता है, ये मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए असाइनमेंट, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, और यहां से लिखवाना स्टार्ट करूंगा, और ये सारा लिखवाऊंगा। अभी आपको जो नोट करना कर लो, सारा लिखवाऊंगा मैं। आपका असाइनमेंट मैंने दिया, इसकी रीडिंग करनी, इसकी करनी है रीडिंग, इसकी करनी है रीडिंग, और इसकी करनी है, इसकी भी करनी है रीडिंग। PS1 PS2 का डिफरेंस और साइक्लिक नॉन साइक्लिक सब रीड करके रखना है बच्चों। लिखवाऊंगा मैं आपको। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। बच्चों मजा आ रहा है कि बोर की तकलीफ जा रही है? मजा आ रहा है सर। एक्चुअली कंसेप्चुअल चीजें ये। फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को लगता है कि यहाँ पर बायो में कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, बट एक्चुअली कंसेप्चुअल चीज है, और इस पे इतने ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं जिसकी हद। सो जस्ट ट्राई टू बी अटेंटिव। मैंने जो पढ़ा है उसको ध्यान से सुनते रहिए। लिखाने का काम मेरा रहेगा, बट अपने रफ में इसको थोड़ा थोड़ा लिख के रखिए। फेयर वर्क मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से पूरा लिखाऊंगा मैं, पूरा मतलब ये सारा मैं लिखवाऊंगा। आपको रीड करके रखना है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, PS1 PS2 एंड साइक्लिक नॉन साइक्लिक। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। Any doubt in today's session? No, sir. नो डाउट सर। See you in the next class. All the best. थैंक यू Excuse सर। me. थैंक यू सर। इसको Thank you, अच्छे से sir. सर बाय। इसको अच्छे से इसलिए पढ़िए बच्चों, क्योंकि
यही मैं अगले टेस्ट में पूछने वाला हूं, इस संडे के टेस्ट, इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे जो टेस्ट होने वाला। सो बी श्योर कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए प्रसन्ना। Sir, then what is about fear fighting? फियो फाइटिंग का कुछ नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जैसे वो खेल प्रसन्ना खेला है ना आपने, म्यूजिक ऑन कर दिया और अपना पिलो पास कर रहे हैं, क्वेश्चन पास कर रहे हैं, तो भाई वो तो उसका काम क्या है, वो आगे को पास ऑन कर देगा बस। Okay, sir. एनी डाउट इन टुडे सेशन? सर हाँ बोलिए। सर आप आज टेस्ट लेने वाले थे ना इसके प्रीवियस टॉपिक्स पर? आज टेस्ट होने वाला था, इज इट? हाँ सर, सर आप आप बोले थे। बोले कि मैं Yes, 10 sir. मार्क्स की टेस्ट हाँ, और फिर जिसको उसमें 60% के ऊपर मिलेगी वो ये लेक्चर अटेंड कर सकता है। ओ तो वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों, पूरा अटेंड कर लिया और अब बता रही हैं डॉक्टर भंडारी आप हैं। सर आपने अभी टेस्ट की बात निकाली तो मुझे वो कल की बात याद आ गई। ओके, एक्चुअली आपने पहले मुझे रिकॉल कराना था सो दैट मैं पूछता और उसके बाद, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि मैं नहीं चाह रहा था कि सारे अटेंड करें, जो पढ़ रहा है वो अटेंड करे। सो नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी मैसेज डाल के याद दिला देगा सर 10 मार्क्स का टेस्ट, एंड देन ओनली विल स्टार्ट द क्लास। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, यस सर। सम्यक पूछ रहे हैं आज का लिखना या नेक्स्ट लेक्चर में जो आप बताओगे वो लिखें? सम्यक ये जो बोर्ड पर बना हुआ है ये आप लिख सकते हैं रफ, मैं आपको लिखवाऊंगा मैकेनिज्म स्टार्ट से। सम्यक अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। एक और चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आया है। और कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में किसी का भाई? चलिए, सो आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसको ध्यान से पढ़िएगा, पहले टेस्ट होगा, देन विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। मैकेनिज्म में वही बच्चा अटेंड करेगा जो इस टेस्ट को किया हो। कैन यू प्लीज अपलोड यस्टरडेज लेक्चर? प्राजक पाटिल, आई विल नॉट बी अपलोडिंग दिस लेक्चर। प्राजक भाई आपको पढ़ना है, बस जितना मैंने बताया उतना पढ़ना है और इसको बार बार देखते रहना है, वो बाद में सारे अपलोड किए जाएंगे। प्राजक अंडरस्टूड? ओके सर। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।